Friends, welcome back to my YouTube channel. In my first video, I started with discussion with HRM, that is the Human Resource Management. And in the first video, I have already discussed about the introduction of the Human Resource Management, objective of the Human Resource Management, and the nature of the Human Resource Management. I hope I have made that three topics clear to you. And now we are going to discuss about the functions of HRM, very important topic in the field of human resource management, because we need to learn what are the different functions of the human resource management. Then we will be discussing some of the challenges that are faced by it. And then we will be focusing on some of the important functions that are performed by an HR manager. So let's begin with it. So I'm going to discuss all these topics with the help of the PPT that I have prepared for you people. First of all, let me discuss about the functions of the HRM. What basically functions of HRM is? What is the meaning of function? Functions are those activities that a particular organization or a particular thing about which we are talking that is going to perform. For what purpose it is made. So those are the functions that need to be performed by any of the activity. So now we are going to discuss about the human resource management. That's why we are going to discuss about the functions of the human resource management. As you can see in the PPT, I have jotted down some of the very important functions of the HRM. If I talk about first point, it's human resource planning. My dear friend, human resource planning is a very important part. Again, I am going to be in bilingual language, that is Hindi and English. So please cooperate with us. So human resource management का सबसे important point होता है हमारा planning. Planning, as we all know, what is planning? Planning is deciding in advance what to do, when to do, and how to do. So when we are discussing about the human resource management, human resource has to, the people who is controlling the human resource has to perform a lot of things. So the person who is performing this function that we normally call as HR, that is the human resource, that particular person is responsible for carrying out different type of functions like selection, recruitment, then developing the people, selecting the correct people for the correct position in the organization. क्योंकि हमारी जब organization की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे different type of वर्क होता है, जैसे कि हम कहते हैं जॉब इवैल्यूएशन की बात करते हैं या जॉब एनालिसिस की बात करते हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के फंक्शंस होते हैं जिसको करना होता है. जैसे एक छोटे से अगर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि भाई हमारे पास एक इंजीनियर की जरूरत होती है जो कि सारे टेक्निकल वर्क को देखेगा. हमें कुछ लेस एजुकेटेड लोगों की जरूरत होती है जो कि सिंपली, जैसे हम कहते हैं सिंपली ITI बिलोंग करते हैं या बहुत ज्यादा हाई डिग्री की नॉलेज नहीं ले रखी है. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल रीजंस दे हैव नॉट टेकन, बट हमें उनको भी जॉब देनी है. तो अब उनको जॉब कैसे दें? तो उनको हम मशीनरी पे लगा देते हैं ताकि वो मशीन्स पे वर्कआउट करेंगे. हम उनको एक बार बता देते हैं कि ये स्टेप्स होते हैं, इसके थ्रू हम अपनी मशीन्स को रन करेंगे और वो लोग बैठकर उस मशीन को चलाते हैं. फिर उनसे भी लेस एजुकेटेड लोगों की जरूरत होती है, जैसे 4th क्लास एम्प्लॉयज की जरूरत होती है हमारे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि 4th क्लास एम्प्लॉयज जो वर्क करते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क होता है. आप खुद इमेजिन करिए, यू आर द बॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आप अपने केबिन में घुसते हैं और चारों तरफ कूड़ा पड़ा हुआ है. क्या आपको लगेगा कि आप बॉस हैं? नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि हमने ये सुना है भाई कि जो भी एक बॉस का कमरा होता है वो वेल नीट एंड क्लीन होता है, मे बी डबल AC लगा हो, बढ़िया सी टेबल होती है, उस पे शीशा रखा हुआ होता है और उसके ऊपर बहुत सारे मतलब एक डेली लाइफ को रन करने के लिए या बिजनेस कहते हैं हम कि एक ऑफिस को रन करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है वो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होती है, वेल अरेंज्ड होती है, सोफा सेट पड़े होते हैं ताकि कोई भी अगर बाहर से आता है मिलने के लिए मैनेजर को या हमारे बॉस को तो उसे बैठने के लिए भी जगह होती है. तो इन सबको कौन मैनेज करेगा? वो 4th क्लास एम्प्लॉयज मैनेज करेंगे. आपको पानी कौन पिलाएगा? 4th क्लास एम्प्लॉयज लाएंगे. तो अब जो पानी पिलाने वाला इंसान है या आपके ऑफिस को मेंटेन करने वाला इंसान है, हम उसे बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं कर सकते हैं. ऐसा क्यों नहीं कर सकते?
एक छोटे से एग्जांपल से समझिएगा। आपका प्रोडक्शन हाउस है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं, और प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं तो उसमें कुछ रॉ मटेरियल भी यूज होता है। जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो कहीं बाहर से ट्रक में भर के लाया जाता है। अब ट्रक में भर के सामान जब रॉ मटेरियल आपकी इंडस्ट्री में पहुंच जाता है तो क्या ट्रक वाला भैया खुद उसे उतारेगा? बिल्कुल नहीं। उसके लिए कुछ लोगों को हमने रखा हुआ होता है जो लेस एजुकेटेड होते हैं, नॉन एजुकेटेड होते हैं, उनको रखा हुआ होता है। थोड़ी देर के लिए जस्ट उल्टा इमेजिन करिएगा, जो हाईली क्वालिफाइड बंदे हैं आपके कंपनी के अंदर, इन योर इंस्टीट्यूट, इन योर ऑर्गेनाइजेशन, लाइक दोज पीपल हु हैव डन बीटेक, एमटेक और पीएचडी, हु हैव डन who has taken diploma in this management field from the Indian Institute of Management। हमने क्या किया, इन लोगों को लगा दिया कि इस ट्रक से सामान उतार के कंधे पे लाद लाद के वो गोडाउन में ले आके रखेंगे। और जो लेस एजुकेटेड हैं, जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली है या बहुत कम क्वालिफाइड है, उन लोगों को हमने ऑफिस में बिठा दिया। अब खुद सोचिए क्या क्या सिनेरियो होगा एक ऑफिस के अंदर। क्या प्रॉपर तरीके से सारे काम को मैनेज किया जा सकेगा? बिल्कुल नहीं। तुरंत ही तालाबंदी, हड़ताल हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि हाईली क्वालिफाइड कहेगा सर मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सारी एजुकेशन ली, इतनी सारी डिग्रियां ली, इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए, इतनी सारी स्किल्स अरेंज करी, नॉलेज ली, वो सब किस काम के हैं? क्या ये बोरा उठाने के लिए था? अगर यही करना था तो बिना पढ़े लिखे भी तो ये कर सकता था। और जो लेस एजुकेटेड है, लेस ट्रेंड है, लेस नॉलेजेबल बंदे हैं या जो लोग हैं जिनको हमने हायर कर रखा है, अगर उनको ऑफिस में बिठा दिया तो हर दूसरे शब्द पूछेंगे सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा, लेटर कैसे लिखा जाएगा, उनको नहीं पता, वाउचर कैसे भरे जाते हैं, उनको नहीं पता। तो जब ऐसे सिनेरियो होगा तो आप खुद सोचिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल पाएगी। तो इन सब चीजों को प्रॉपरली अरेंज करके हम कहते हैं एक फर्म के अंदर लाने का काम किसका होता है? एक एचआर मैनेजर का होता है। तो इसीलिए हमने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हमें सबसे पहले प्लान करना पड़ता है कि हमें किस किस तरह के लोगों की अपने फर्म के अंदर जरूरत होगी। फिर जब इन सबको कर लिया, जिसे हम कहते हैं जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस, जो इसमें थर्ड पॉइंट पे दिया हुआ है, जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो जब हम अपनी फर्म के अंदर when we are trying to search about the different kind of vacancies that can be created in the organization, that is job evaluation, and what kind of people will be required for performing that kind of job, that is job analysis। so ये दोनों काम करना इंपॉर्टेंट है। फिर जब ये सारा काम कर ले तो हम क्या करते हैं, अपनी वैकेंसीज को पुट आउट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं, उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, एंड देन फाइनली हम उनको अपनी इंडस्ट्री के अंदर लेके आते हैं। सो दैट इज कॉल्ड जॉब एनालिसिस, प्लेसमेंट। अब लोगों को नौकरी भी दे दी, लोग आपके यहाँ काम भी कर रहे हैं, साल भर हो गया, नया साल लग गया, तुरंत होता है सर कुछ तो पहले से सैलरी बढ़ा दीजिए, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं गट्ठर लेके घर से आऊंगा पैसों का बड़ा सा और उसमें से लो भैया पैसे लो पैसे लो पैसे लो, या हर महीने आज सबकी सैलरी 10,000 रुपये बढ़ गई। अगर सबकी ही सैलरी 10,000 रुपये बढ़नी है तो मैं मेहनत क्यों करूं, क्योंकि दूसरा बिना मेहनत किए हुए पा रहा है। जब अगर ऐसा होगा तो सारे के सारे एम्प्लॉयज के बीच में यही चलेगा, भैया मैं काम क्यों करूं, क्योंकि दूसरा आदमी बिना काम किए हुए ही अप्रेजल ले रहा है। तो इसलिए हमने क्या रखा, परफॉर्मेंस अप्रेजल। each and everybody's salary will be increased according to the performance that you are giving। so हम आपसे ये पूछते हैं भाई आपने क्या क्या किया पूरे साल में, जस्ट जॉट डाउन करिए, एक परफॉर्मा बना के देते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको भरना होता है और उसे हम सबमिट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल निकालते हैं। देन नेगोशिएशंस भी होता है एक फंक्शन हमारा। नेगोशिएशन, आपको जॉब पे हम रखने जा रहे हैं, हमने कहा सर आप यू आर सेलेक्टेड फॉर द जॉब। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, सर मुझे करना क्या क्या होगा? तो हम एचआर का बता देते हैं सर आपको ये काम करने होते हैं। द नेक्स्ट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम माय साइड इज सर व्हाट विल बी माय सैलरी। अब द पर्सन सिटिंग एट द एचआर पोजीशन ही हैज टू शो टू द मालिक आल्सो कि सर देखिए मैं कितने सस्ते में आपको कितने बढ़िया बढ़िया एम्प्लॉय ला दिए। तो हम कहते हैं, एचआर मैनेजर कहेगा सर इस पोस्ट के लिए आपको 30,000 मिलेगा। फिर मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ कि वाओ आई हैव टू डू दिस 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 वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर सो कॉम्प्लिकेटेड,
नहीं सर, इतना हैवी काम करना है, इतना हैवी काम के लिए आप सिर्फ 30,000 देंगे? अच्छा चलिए 35,000 दे देंगे। नहीं नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिस्की काम है। अच्छा, ना आपकी ना मेरी 40,000, इसके ऊपर एक पैसा नहीं दे पाएंगे। सो व्हाट इज दिस? दिस इज बार्गेनिंग आई कैन से, और नेगोशिएशंस विद द एम्प्लॉय एंड द व्हाट वी से द पीपल whom वी आर हायरिंग। तो उनके साथ हम क्या कर रहे हैं? नेगोशिएशंस कर रहे हैं। देन रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया हमारा। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, आप नई नई जॉब में आए हैं, आपको नहीं पता आपको क्या करना है, किससे मिलना है, किससे क्या बात करनी है। मुझे भी नहीं पता कि आप कौन हो, किस पोस्ट के लिए आए हो, आपको नहीं पता ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या करना है, तो आप करोगे क्या? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं जिसमें सारे के सारे न्यू कैंडिडेट्स जिनको हमने अपॉइंट किया है, दे ऑल कम टू दैट व्हाट वी से this orientation program. The senior member comes there or HR people come there, they give the introduction to each and everyone by this person is this, he has been appointed for this person, this particular positions, or these are the job responsibilities that will be performed by this particular person. तो इस तरह से बता के हम क्या कर रहे हैं? सबका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। तो और इसमें ही इसी प्रोसेस में हम सबको ये भी बता देते हैं कि वो किन किन काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे या किस काम के लिए किससे मिला जा सकता है। तो इस तरह से करके हमने क्या किया? सबको सबसे इंट्रोड्यूस करवा दिया। सो दिस इज ओरिएंटेशन प्रोग्राम। नाउ कंपनसेशंस, व्हाट अमाउंट इफ like if I say in very good organization, if you have heard about कि वहां पे क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन भी बनता है। व्हाट इज वर्कमैन कंपनसेशन? if any of my employee is hurt by something or any mishappening happens to one of any of my employees while he is working in the organization, while he is in the office, then and he has been working in the office from a very long time, say 10 to 15 years he has been with us. So because of his services, now it's our responsibility कि हम उसको देखभाल करें। ऐसा ना हो कि अगर किसी भी मिस हैपनिंग की वजह से उसके हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, वो वर्क करने लायक नहीं रहता है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसकी देखभाल करें, क्योंकि उसने जिंदगी के 15-20 साल हमारी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया। जब 15-20 साल तक उसने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विसेज दी हैं, तो कुछ हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी, दैट इज मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम भी उसको देखें, उसको अकेला ना छोड़ें। तो जो भी एक लमसम अमाउंट हम बना लेते हैं, भाई पर मंथ आपको 45-50,000 मिलते थे, चलो उतना नहीं दे पाएंगे हम, लेकिन फिर भी पर मंथ 20,000 आपको देते हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो अर्न योर ब्रेड एंड बटर। तो दिस इज कॉल्ड कंपनसेशंस। देन डी रिक्रूटमेंट, training process, discipline. Each and every organization has certain kind of rules and regulations that each and every one working in the organization has to follow. या एक हायरार्की होती है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं सबसे पहले किसको अप्रोच कर सकता हूं, अगर उनसे भी सॉल्व नहीं तो फिर किसको अप्रोच कर सकता हूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्टली मैं यहां से निकलूं और सीधा टॉप मैनेजर के पास पहुंच जाऊं, सर मुझे तो ये प्रॉब्लम आ रही है। There is certain kind of discipline that has to be maintained in the organization. So these are some of the important functions of the HRM or human resource management. The person who is sitting and controlling all these functions is known as HR manager, that is human resource manager. Coming to the next slide. Now we are going to talk about some of the challenges that are faced by the human resource manager. I have categorized these challenges into 3 parts. First is external environment and competitive challenges. Then next is the HRM policy, practices and the activities, and then employee concern. When we are working in the organization, we are running an organization, you must have heard about SWOT analysis, that is SWOT. SWOT analysis, that is strength, weakness, opportunity and the threat. Whenever we are entering in the business environment, we always first of all do SWOT analysis, that is हम क्या करते हैं, जब भी हम बिजनेस में एंटर कर रहे हैं तो
तो हम सबसे पहले अपना स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। क्यों? ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमारे जिस बिजनेस को हम करने जा रहे हैं उस बिजनेस की क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या थ्रेट्स हैं, और उनको हम फिर एनालाइज करते हैं कि हमारे पास इसमें ज्यादा मजबूत पक्ष किसका है, विच साइड इज मोर स्ट्रोंगर। अगर उसके थ्रेट्स और चैलेंजेस ज्यादा ही बड़े होंगे देन वी ड्रॉप आउट द आइडिया। बट अगर हमारी स्ट्रेंथ, और हम कहते हैं दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं हमारे पास, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल वो एनवायरनमेंट जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, और एक्सटर्नल वो एनवायरनमेंट जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक what is the size of my employees, I know that is my strength. All of my employees are well trained, well educated, they all have technical knowledge, they all are very productive, hard working, cooperative. These are my strengths that I know, and I can module according to it, या मैं कहता हूँ mold according to myself. So इन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ. But what kind of economic structure is going in the country? What will be the government policies related to the business? What inflation or deflation rate is going to come in the society? Is it in my hands? Can I control them? नहीं. कितनी महंगाई होगी, कितनी सस्ताई होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होंगी, लॉज क्या होंगे, जिस बिजनेस को हम करने जा रहे हैं वो तो हमारे हैंड में नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हमसे पूछ के नहीं बनाएगी, भैया जी बताइए क्या पॉलिसी बनाई जाए, वो हमसे पूछ के नहीं बनाने वाले। दैट इज, इसीलिए वो हमारी रीच से बाहर है, दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो सेम तरीके से एक एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को भी एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस को फेस करने पड़ते हैं। लाइक एज इन द पीपीटी यू कैन सी, फर्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन? पहले हमारा सपना होता था कि हम एक्सपोर्टेड सामान लेकर आएंगे, उसे यूज करेंगे, और जब उसे लेकर भी आते थे तो पूरी सोसाइटी को सुनाते थे, भैया ये तो एक्सपोर्टेड मार्बल है, एक्सपोर्टेड कर्टन है, एक्सपोर्टेड शर्ट मैंने पहन रखी है। लेकिन जरा आज किसी से कह के देखिएगा कि मैंने एक्सपोर्टेड शर्ट पहन रखी है, कहेगा छोड़ो, हाँ तुमने अमेरिका की पहनी, मैंने यूरोप की पहन रखी है, तुमने इस कंपनी की पहनी, मैंने उससे बड़ी कंपनी की पहन रखी है। भाई, बिकॉज हमने क्या किया है, पूरे वर्ल्ड को ग्लोबलाइज कर दिया है। वी हैव क्रिएटेड अ यूनिक मार्केट इन द वर्ल्ड, ग्लोबल मार्केट। अब हम ये नहीं कहते कि इंडिया मार्केट या अमेरिकन मार्केट और कोई मार्केट, नाउ वी टॉक अबाउट ग्लोबल मार्केट। वी थिंक ऑफ डूइंग द बिजनेस एट द ग्लोबल लेवल। सो जब ग्लोबल लेवल पे बात करने वाले हो, ग्लोबल लेवल पे जाके आपके कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं दूसरी फर्म से, दूसरी कंट्रीज से, ऐसी कंट्रीज जो आपसे कहीं 10 साल आगे तक चल रही है टेक्नोलॉजी में, जब उनसे कॉम्पिटिट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बैठा हुआ है उसको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है कि कैसे लोगों को एम्प्लॉय किया जाए कि हम दूसरी फर्म के साथ कॉम्पिटिशन कर सकें। देन कम्स टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी nowadays, I think all of you know what is the role of technology in the field of business. हम कह सकते हैं कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी शायद सबसे ज्यादा फ्रंट पे आ गई है और ह्यूमन पीछे पहुंच गया है टेक्नोलॉजी की वजह से। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी एक्टिविटी नाउ इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द टेक्नोलॉजी। पूरी की पूरी कंपनी चल रही है सिर्फ एक सिस्टम, छोटा सा हम कहते हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप ने हमने रख रखा अपने ऑफिस में, उससे पूरी मशीनरी कंट्रोल कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। कभी किसी जमाने में एक चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह जाने में 6-6 महीने ले लिया करती थी, आज हम अपने सिस्टम पे बैठ के मेल कर देते हैं फटाक से, और हजारों किलोमीटर दूर बैठा दूसरे आदमी को हमारे रिस्पांस पता लग जाता है, या ऑर्डर मिल जाता है हमारा, या उसकी कंफर्मेशन मिल जाती है कि वो हमारे साथ बिजनेस करना चाहता है या नहीं करना चाहता। व्हाई? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। So technology has totally changed the business environment nowadays. तो जब इतना सारा चेंज कर दिया है तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बैठा है उसके लिए भी काफी सारी परेशानियां हैं। नेक्स्ट, मैनेजिंग चेंजेस। अब ये डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ हम देखते हैं, डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ चेंजेस आते जाते हैं एनवायरनमेंट में, और इनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स आते रहते हैं जिनको शायद हम खुद भी नहीं जानते होते, लेकिन उसे जानना पड़ता है क्योंकि एनवायरनमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके चलना है। देन कॉस्ट कंटेनमेंट। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती जा रही है, हमारे कहते हैं हम जो वेस्टेज होता था वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती जा रही है और कॉस्ट कम होती जा रही है।
तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कंपटीशन है कि हम फॉरेन कंट्री के लोगों से या फॉरेन कंपनीज जो हमारे पास है उनसे हम कैसे कॉम्पिटिट करें, बिकॉज उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा बेटर है, इसलिए हमसे ज्यादा बढ़िया प्रोडक्शन करती है। और जब बढ़िया प्रोडक्शन करती है, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करती है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बहुत कम हो जाता है। और ऐसी टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ इंप्लीमेंट करना ताकि हम भी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएं, वो एक बड़ा चैलेंज होता है, चैलेंज हो जाता है। एंड देन वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। अब वो दिन चले गए जब इंडिया के यूपी में सिर्फ यूपी के लोग काम करेंगे, केरल में सिर्फ केरल के लोग काम करेंगे, मुंबई में सिर्फ मुंबई के काम करेंगे, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द स्पीड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। आज एक जगह का इंसान दूसरी जगह तक चला जाता है काम करने के लिए, क्योंकि वहां उसे ज्यादा अच्छा अर्न मिल रहा होता है। आज हम देखते हैं हमारे आधे से ज्यादा पंजाब जो है कनाडा में बसा पड़ा है। तो वाई, तो हम कहते हैं कि हर जगह पे कहीं ना कहीं वर्क फोर्स डाइवर्सिटी है। एक ही जगह पे जब डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोग आएंगे, उनका कल्चर दूसरा है, उनका एनवायरनमेंट दूसरा रहा है, उनके वे ऑफ लिविंग दूसरी है, उनके वे ऑफ टॉकिंग दूसरी है, दीज ऑल थिंग्स आर चेंजिंग, बट अ सिंगल पर्सन, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, हैज टू मैनेज ऑल ऑफ देम belonging to the different diversity environment, diverse environment. So it is going to be a big challenge for the human resource person. Then now coming to human resource policy, human resource practices and human resource activities. Then what are the different activities that a human resource manager has to do? He has to do planning, recruitment, staffing, job designing, training and development, compensation, payroll, labor welfare and relations. So these are some of the important functions that are performed by the, or these are some of the, we can say, very common challenges in front of the human resource manager, like human resource planning, recruitment, staffing, job designing, training and development, compensation, payroll, welfare and relaxation. यहाँ पे एक छोटा सा बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। किसी कंपनी को कुछ लेबर्स की रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ने उनको हायर किया, उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आए, उस कंपनी के अंदर जो मशीन्स थी उनको चलाने के लिए जो भी नॉलेज, जो भी ट्रेनिंग, जो भी स्किल्स देने की जरूरत थी, उसने उन सब चीजों के लिए अरेंजमेंट किया। और इनको इस तरह के नॉलेज देने में मान लीजिए 2 महीने का वक्त खत्म हो जाता है। दे हैव गिवन 2 months ऑन दिस to the new person who has joined. After a period of 2 months, now when the person has learned everything, now he is able to run the machine, he is able to control the machines. What happens? सर मुझे तो दूसरी जगह से ज्यादा अच्छा ऑफर आ गया है, मैं वहां जा रहा हूं, आई एम रिजाइनिंग। सिलेक्शन किसने किया? आपने किया। रिक्रूटमेंट का सारा खर्चा किसने किया? आपने किया। उसे 2 महीने तक बैठ के सैलरी किसने दी? आपने दी। इसके सारे ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, स्किल्स, सब चीज के ऊपर किसने खर्च किया? आपने किया। जब आपने सब कुछ कर दिया और वो बिल्कुल कहते हैं रेडी टू वर्क हो गया, what he is doing? He is leaving your job and wants to go somewhere else. This is a very big challenge that is called retaining of the employees in an organization. So that is very, very important. Now coming to employees concern. What is employees concern? Like background diversity, level of stress and motivation, age distribution, gender issues are there, educational level system, and these things are there. Then turnover of the organization is there, politics, conflicts are always there, privacy issues are there, job insecurity is there. हम कभी भी कहीं जाते हैं काम करने, सबसे पहले होता है पता नहीं भगवान इस महीने मेरी नौकरी बचेगी नहीं बचेगी, भगवान मेरी नौकरी बचेगी नहीं बचेगी। यही करते 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 हम 4-5 साल निकाल देते हैं। बट देन ऑल्सो आफ्टर वर्किंग फॉर 3 to 4, 5, 10 years in an organization, then also we are not safe and secure कि हमारी जॉब बचेगी या चली जाएगी। So this is very, very important. So these are some of the challenges of a human resource manager. And now we are going to talk about some of the important functions that HR manager does. Before this, we have talked about the challenges that the HR manager faces.
and now we are going to talk about the functions of the HR manager. So I have divided the functions into two parts. One is managerial function and the second is the operative functions. Under managerial function, if you look, we have planning, organizing, directing, staffing, controlling, motivating. So these are some of the important functions that an HR manager does. Now coming to operative functions. In the operative function, if you see, first is the procurement function. Under procurement, what is the meaning of procurement? कैसे हम लोगों को procure करने वाले हैं, how to hire them and to retain them in the job. So first process what is done under procurement is job analysis, then human resource planning. वो कर देना कि एक साथ तो ऐसा नहीं 10,000 लोगों को हम एम्प्लॉय कर लेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट पॉसिबल. हम स्लोली धीरे धीरे करते सबको हायर करते हैं. सो जॉब रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, देन रिक्रूटमेंट, then selection, induction, and transfer to the required department in which we want them to work. The next is the development. What kind of development? When the person has joined your organization, now it is your responsibility for the development of that particular person. So what all you have to do is performance appraisal. सबसे पहला तनख्वाह. भैया पैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब साइड हो जाओ. देन ट्रेनिंग, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग, फर्स्ट आई हैव टॉक्ड अबाउट परफॉर्मेंस अप्रेजल. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग. जब आप फर्म के अंदर हैं, वहां पे फर्म के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, तो हर फंक्शन को हम ये चाहते हैं कि हर इंसान जो हमारी फैक्ट्री के अंदर, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, वो धीरे धीरे करके सभी जॉब रोल्स को समझ ले. क्यों? कभी ऐसा हो कि कभी कोई ड्यूटी पर ना आए या छुट्टी पे चला जाए या फर्म को लीव कर दे, अचानक से वो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो उस काम को कौन करेगा? तो हम रोटेशनल बेसिस पर उसको वहां पे डिप्लॉय कर करके डिफरेंट लोगों को क्या करते हैं, उन सारे कामों को सिखा देते हैं, ताकि कभी भी कोई जॉब वैकेंसी हो जाए रेंडमली, या कोई छोड़ के चला जाए, किसी की डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाती है, तो ऐसा ना हो कि भैया वो तो आदमी है ही, हम काम कैसे करें. तो उसकी जगह दूसरे आदमी को फटाफट डिप्लॉय करके हम अपने काम को कैरी ऑन करते हैं. देन एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कि आपको कैसे कैरियर प्लानिंग करनी है. आपने एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन हुए, कई सारी फर्म्स हैं जो आपकी एजुकेशन को प्रमोट करती है, जाइए भाई आप भी पढ़ाई लिखाई करिए, आप साथ में जॉब करिए, साथ में आप पढ़ाई करिए, आपके सारे पढ़ने लिखने का सारा खर्चा फर्म उठा के देगी, लेकिन बशर्ते जिस दिन आपकी ट्रेनिंग एजुकेशन पूरी हो जाएगी, उसके अगले 5 साल तक आप कंटिन्यूअसली फर्म के साथ रहेंगे, फर्म को छोड़कर नहीं जाएंगे. So these are some of the development functions that has to be performed by the HR manager. Then compensation. Compensation, it will be done according to the job evaluation. किस तरह की, किस नेचर की जॉब है, accordingly ही हम क्या कर सकते हैं, compensate कर सकते हैं. Then wages and salary, bonus एंड इंसेंटिव. दिवाली आते ही सबका मुंह फटना चालू हो जाता है, भैया बोनस मिलेगा, और कम से कम बोनस इतना मिले कि हमारी दिवाली आराम से मन सके, हमारे बच्चे भी मिठाई पटाखे छुड़ा सके, मतलब मिठाइयाँ खा सके, पटाखों को छुड़ा सके, तो कम से कम इतने बोनस जरूर मिल जाए. तो और इंसेंटिव्स, साथ में क्या गिफ्ट मिलने वाला है. तो दीज आर द 2 important things, and the payroll that has to be maintained by the person, that has to be maintained by the human resource manager. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही हमारी सैलरी को बनाता है, उसमें कटिंग कितनी करनी है सैलरी में, कितना हमें इनकम टैक्स के लिए पे करना है, कितना आपको एचआरए देना है, कितना आपको बोनस देना है, कितना आपको पेंशन के लिए करना है, ग्रेचुइटी कितनी रखनी है, मैच्योरिटी कितनी रखनी है, ये सारे काम किसके होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के. नेक्स्ट कमिंग टू इंटीग्रेशन. हाउ टू इंटीग्रेट. इंटीग्रेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन. काम ना करने की इच्छा को भी काम करने में बदलना ही मोटिवेशन कहलाता है. द एक्ट ऑफ कन्वर्टिंग somebody's unwillingness to
to do work into willingness to do work is called motivation. अगर आप ऐसा कर पाते हैं, you have done the motivation. Then job satisfaction, grievance redressal, collective bargaining and the conflicts. So these are some of the integrations. जब आपकी कुछ परेशानियां हो उनको दूर किया जाए, आपसे डिस्कशन किया जाए, आपकी क्या परेशानी है, उस परेशानी का हल दिया जाए, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए समझते हैं अपने आप को कि भाई हमें ये प्रॉब्लम हुई थी, हमने मैनेजर सर से कहा, उन्होंने हमारी समस्या को सॉल्व कर दिया। भाई इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है क्योंकि यहाँ पे हमारी बातों को सुना जाता है। The next is maintenance. What kind of maintenance? Maintenance of health, safety, social security, welfare scheme and personal development. Health, जब आदमी हम कहते हैं जिन पर्सनल्स को हमने हायर किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, अगर उनकी हेल्थ ही सही नहीं रहेगी, कैन दे परफॉर्म 100%? आई डोंट थिंक सो। जब आप मन से खुश हो, हेल्दी हो, चेयरफुल, एक जो कहते हैं चेहरे पे एक रोशनी होती है, अगर वो आपके चेहरे पर है, तब अगर आप काम करने आते हैं तो जितना आप परफॉर्म कर सकते हैं उसका शायद 1/3 भी आप तब नहीं कर पाएंगे जब आप बीमार हो। तो इसलिए आपका हेल्दी होना जरूरी है। वेल्दी तो उससे होते रहेंगे हम धीरे धीरे। देन सेफ्टी, जहां पे हम वर्क कर रहे हैं वहां पे एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। कोई भी डेंजरस या जैसे नुकसान देने वाली चीजें, hazardous things, वो नहीं होनी चाहिए। देन सोशल सिक्योरिटी, जब हम सोसाइटी में निकले, सोशल सिक्योरिटी में जैसे जॉब सिक्योरिटी आ जाती है कि भाई सोसाइटी में हम इतना है कि हम अपनी जॉब से बाहर नहीं निकाले जाएंगे, हमारी जॉब 100% सिक्योर है। अगर ये एक बैकअप है हमारे पास, दैट माय जॉब इज 100% सिक्योर, तो मेरा मन ऑटोमेटिकली काम करने में लग जाता है, बिकॉज मुझे इस बात का डर नहीं रहता पता नहीं इतना काम कर रहा हूँ मैं जॉब में रहूंगा या नहीं रहूंगा। देन वेलफेयर स्कीम, डिफरेंट टाइप ऑफ वेलफेयर स्कीम्स आ दिया। कभी हम अपने एम्प्लॉयज का मेडिकल इंश्योरेंस करा देते हैं, मेडिकल क्लेम करवाते हैं, फिर उनके लिए रहने के लिए कई बार देते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन देते हैं, हाउस रेंट अलाउंस देते हैं, कमिंग टू द ऑफिस expenses and traveling expenses देते हैं। So this is how we all do, this is how we maintain the employees of the organization. So these are some of the important functions that are performed by the HR manager of the organization. I hope I have cleared these 3 things today, and let me revise it today, once again. Today we have talked about the functions of the HR. Then we have talked about certain challenges of the HR, and then at last we have talked about the functions of the HR manager. Thank you very much.